Welcome back students. If you have not seen part 1 and part 2 of Rise of Nationalism in Europe, kindly watch them first so that I can take you forward to part 3 of this chapter. Okay, now in part 2 we had seen that July Revolution happened in 1830. France sparkled the revolution in Brussels and Belgium broke apart from United Nations of Netherlands. 1830 witnessed one more revolution, that was Greek Revolution. Revolutionary societies which were there in Greece, they sparkled this revolution. अब देखो 15th century में Greece was under Ottoman Empire and now they wanted freedom from this. They got support from those Greeks who were already in exile. Other than that, they got support from Western European states who had deep sympathy to the ग्रीक कल्चर. उनको लगता था कि ग्रीक का ये कल्चर बहुत महान है, इसको संभालने की ज़रूरत है, इन लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. Poets and artists, they also supported this revolution. In fact, Lord Byron, who was an English poet, he tried to collect funds to support this revolution. Anyhow, the revolution continued for longer period of time. ठीक है, तुरंत वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फाइनली इन 1832, you need to remember this, finally in 1832, after signing the Treaty of Constantinople, Greek became an independent nation state. ग्रीक एम्पायर खड़ा हुआ. तो 1830 का ये एक और रेवोल्यूशन है. Here now I am telling you about one particular term associated with this chapter, romanticism. This romanticism was an idea. Most of the population of Europe, ज़्यादातर जो population थी यूरोप की, it was composed of illiterate people. We are talking about 17th century, 18th century. So people believe, who had idea of romanticism, कि nationalism can be developed through cultural dances, folk songs, poems. मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं, अब आप ये समझो कि अगर हम गुजराती हैं तो हम गरबा करके, या पंजाबी है तो भांगड़ा करके, या अगर हम बंगाल में गए तो दुर्गा पूजा करके, है ना, या ओनम को सेलिब्रेट करके, ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी लैंग्वेज या हमारा ट्रेडिशन है, उनके चलते सब एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लोग अपने आप को एक जैसा फील करते हैं, आपस में एक फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड आता है. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज. सो Romanticism is the theory nothing but a cultural movement which helps in developing particular kind of national sentiments, which ultimately leads to strong feeling of nationalism. Here there was one person who basically tried to spread the idea of romanticism all over Europe. We need to remember the name John Gottfried. अब ये जो John Gottfried थे, he said कि if you want to see the real German culture, look into the life of common people, and we can spread the idea of nationalism through our culture, through our language. यहीं से हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो लैंग्वेज से ही रिलेटेड है. रशिया. इफ यू रिमेंबर, इन ट्रीटी ऑफ वियना, रशिया गॉट पोलैंड. आफ्टर गेटिंग कंट्रोल ऑफ पोलैंड, रशिया यूजिंग इट्स पावर ट्राइड टू इम्पोज रशियन लैंग्वेज. मतलब कि वहाँ पे जो पॉलिश लैंग्वेज चल रही थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उसको निकाल के रशियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया. ये ठीक वैसा ही है कि आपको इंग्लिश के बदले रशियन या जर्मन में मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? सो पॉलिश पीपल, दे टुक इट एज एन इंसल्ट टू देयर कल्चर, देयर सेंटिमेंट्स, एंड आर्म्ड रिबेल हैपेंड बिटवीन Russia and Poland common people. Russia was powerful enough to curb this revolt, and उसके बाद इस लड़ाई को कैसे भी करके चालू रखा प्रिस ने. प्रिस used this language as a weapon against Russian power. What did they do? तो चर्चेस होते हैं, चर्चेस में लोग क्या करने आते हैं, प्रेयर्स करने आते हैं. So for religious instructions they used Polish language, and this is how they tried to go against Russian powers. Now Russia did not like this effort by them, and they sent them to the
साइबेरिया। अब साइबेरिया क्यों भेज दिया, साइबेरिया की जेल में भेज दिया, क्यों भेज दिया? तो साइबेरिया वॉज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ रशिया। तो रशिया ने सोचा कि हमारे सामने तो सिर उठाने की हिम्मत कर ली, लेकिन इस ठंडी के सामने सिर उठा के दिखाओ। सो दैट वॉज अबाउट 1831 हाउ पोलैंड ट्राइड। 1848 hunger, hardship and revolt. This is the topic in your book. अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हंगर। अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बट फूड ग्रोइंग कैपेसिटी डिड नॉट इंक्रीज एट द सेम पेस विच लेड टू फूड क्राइसिस, फूड अवेलेबिलिटी क्राइसिस। तो ये हो गया हंगर। हार्डशिप, lot of people were unemployed. Why they were unemployed? Because job opportunities were not there. और ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होने का एक रीज़न ये था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीन मेड रेडी गुड्स। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आपको रेडीमेड टी शर्ट या शर्ट मिल रहा है, अगर आपको रेडीमेड कुर्ती मिल रही है, तो आप वो टेलर के पास जाके स्टिचिंग करवाओगे, वेट करोगे और फिर लोगे। वो हम अब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रेडीमेड मिल रहा है या बहुत कम प्रेफर करते हैं। तो वही फ़र्क है ट्रेडिशनल गुड्स और मशीन मेड गुड्स में। और मशीन मेड गुड्स की वजह से क्या हुआ कि जो वो लोग थे जो ट्रेडिशनली कल्चरली जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते थे, उनको ऑर्डर्स भी मिलना कम हो गए। बिकॉज ऑफ विच मैनी पीपल वेंट अनएम्प्लॉयड, जॉब अपॉर्चुनिटीज वर लेस, एंड French people, they thought that Louis Philippe is completely responsible for this situation. He could not control the circumstances. So, because of revolution, he flee away from that part. मतलब कि वो बेचारा समझ गया कि अब अपनी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड जो बनाया था लुइस फिलिपे को, he fled away and France again become रिपब्लिकन। उसके बाद वहाँ पे वर्कशॉप स्टार्ट किए गए टू मेक वर्क अवेलेबल टू पीपल। और दूसरा राइट टू वर्क लेकर आए। वोटिंग राइट्स सिर्फ मैन को मिले हु आर 21 एंड अबव। दैट इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। विल बी सीइंग द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।